Hello everyone. Today we will discuss class 10th ICSE chapter number 4, the climate of India. So let's start without any delay. This is the part 4 of the video and the parts before this part are available in the playlist. You can check it now. Okay, so let's see. First, today's topic is monsoon and its mechanism. So आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है monsoon and its mechanism. The monsoon has been derived from the Arabic word mausim. So I have told earlier that monsoon that word is derived from an Arabic word. This is mausim that is used by Arabic navigators several centuries ago to for and this word means the season alteration of winds. Okay, so let's read once. The word monsoon has been derived from the Arabic word mausim, which means season. Originally, the word monsoon was used by Arab navigators several centuries ago to describe a system of seasonal reversal of winds along the shores of Indian Ocean, especially over the Arabian Sea, in which the wind blew from the southwest to northeast during summer and northeast to southwest during winter. So इसमें क्या बोला है कि मानसून क्या होता है, ये मौसम क्या होता है. मौसम का वर्ड का मतलब होता है सीजन एंट्रेशन ऑफ विंड्स. और अगर आप देखोगे कि लाइक इन द फ्रॉम द ड्यूरिंग द समर्स द विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, मतलब हमारा साउथ वेस्ट मानसून चलता है. उसके बाद विंटर के टाइम में नॉर्थ ईस्ट मानसून चलता है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट. सो दैट इज़ द सीजन एंट्रेशन ऑफ विंड की रिवर्सल हो रही है डायरेक्शंस का. विंड की डायरेक्शन एकदम अपोजिट हो जाती है समर के टाइम में एंड विंटर के टाइम में उसके अपोजिट. ठीक है, इसीलिए बोला जाता है इसको मानसून. ठीक है, नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स मानसून आर periodic seasonal winds in which there is a complete reversal of wind direction every 6 months. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मानसून होता है वो सीजनल विंड्स का मतलब सीजनल विंड्स होती हैं जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं हर 6 महीने के अंदर. ठीक है, अगर हम देखें विंड्स इन समर का, ये हमारी पिक्चर बनी है. ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये अरेबियन सी से विंड्स जा रही हैं इधर की ओर, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट जा रही हैं, और इधर देखोगे तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट आ रही हैं. सो दिस इज़ द अल्ट्रेशन ऑफ विंड्स एंड इट इज़ नोन एज मानसून. सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, that is the origin of monsoons. As stated earlier, monsoons are basically land and sea breezes on large scale. अगर हम बोलना चाहिए कि what is monsoon, so monsoon are basically the large scale land and sea breeze phenomena. मतलब कि जो large scale पे हमारा land और sea breeze phenomena चल रहा है उसे ही हम monsoon कहते हैं. The sun shines over the Tropic of Cancer from March to May. मार्च टू मई के टाइम जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है. ठीक है, मतलब ये समर टाइम की बात हो रही है क्योंकि जब समर होता है इंडिया में तब हमारा जो सन होता है वो मार्च ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ही होता है. ठीक है, मार्च टू मई. उसके बाद इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो नाउ नेक्स्ट, by the end of May, the differential heating of land and sea brings about a seasonal low pressure on mainland of India and high pressure on the surrounding water body. The low pressure area drags southeast trade winds blowing in the southern hemisphere. As such, after crossing the equator, these winds deflected towards the Indian subcontinent as southwest monsoon winds. They pick up moisture from Arabian Sea. They are named southwest monsoon as they blow from southwest to northeast. The advance of southwest monsoon can be seen in any satellite picture from 1st to 5th June every year. So what is saying in these lines? तो अगर हम इन लाइन्स पे देखें तो सबसे पहले हमारी लाइन है बाय द एंड ऑफ मे. देखो जब मई का एंड होता है ना तो हमारे जो इंडिया की मेन लाइन पे होता है सन एकदम जो सन होता है वो एकदम साइन कर रहा होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है. अब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारा प्रेशर डिक्रीज़ कर रहा होगा. और अगर हम देखें कि हमने एक और फैक्टर पढ़ा था कि जो हमारा लैंड होता है वो बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है, पर सी को टाइम लगता है गर्म और ठंडा होने के लिए. तो अभी जो सी होगा वो कंपेरेटिवली कोल्ड होगा क्योंकि उसको टाइम लगेगा गर्म होने के लिए. ठीक है, तो इसलिए जो सी का प्रेशर होगा वो हाई होगा. तो और हमने ये भी पढ़ा है कि विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है. सो इसीलिए विंड्स को अट्रैक्ट करे. द लो प्रेशर एरिया अट्रैक्ट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम साउदर्न हेमिस्फीयर.
नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द विंड्स, देखो जो हमारी साउथ स्टेट विंड्स होती हैं जो मूव कर रही होती है, जैसे ही इक्वेटर को पार करती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है लो प्रेशर एरिया की तरफ, क्योंकि हाई प्रेशर विंड्स हमेशा लो प्रेशर एरिया की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो जैसे ही वो इक्वेटर को पार करती है वैसे ही वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं टुवर्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू इट्स लो प्रेशर। ठीक है, एंड इसी को हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून मीन्स। ओके ठीक है, जो कि अपना मॉइस्चर अरेबियन सी से पिकअप करती है और वहाँ से इंडिया की तरफ मूव करती है। They are named southwest monsoon as they blow from southwest to northeast. According to their direction, the name is given to the monsoon. इनकी डायरेक्शन ही के थ्रू इनको नाम दिया जाता है, तो उसका नाम साउथ वेस्ट इसीलिए क्योंकि साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट चलती है। द एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून कैन बी सीन इन सैटेलाइट पिक्चर बिटवीन 1 to June ऑफ एवरी ईयर। सो अगर तुम्हें एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून देखना है तो तुम कभी भी सैटेलाइट पिक्चर्स में 1 से 5 जून के टाइम देख सकते हो। ठीक है, now some characteristics or properties of southwest monsoon. Southwest monsoon winds are periodic winds. Periodic winds का मतलब होता है seasonal winds होती है, क्योंकि वो हर सीजन के हिसाब से चेंज होती है इनकी डायरेक्शन, है ना। They blow from southwest to northeast during summer. Okay, southwest monsoon does not cause uniform rainfall in country. इंडिया के अंदर साउथ वेस्ट मानसून से कोई भी मतलब यूनिफॉर्म रेन नहीं होता है, क्योंकि जो इंडिया का एक फैक्टर है कि इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म रेन नहीं होती, कहीं एकदम फ्लडेड हो जाता है तो कहीं एकदम ही ड्रॉट होता है, कंडीशंस एकदम ही ड्राई कंडीशन हो जाती है, एकदम ही फेमाइन हो जाता है। तो वो है चीज़ उसमें, क्योंकि इसीलिए यूनिफॉर्म नहीं है। These winds are erratic, unpredictable, irregular and unevenly distributed. ये जो winds है erratic in nature है, unpredictable, इनको प्रेडिक्ट नहीं किया जाता सकता है कि कब बारिश हो जाए। irregular है, कभी ज़्यादा हो कभी कम, कभी एक दिन बाद होंगी, कभी अचानक से मतलब अचानक से हो जाएंगी, है ना। unevenly distributed, कहीं ज़्यादा कहीं कम, वही चीज़ है। These winds are orographic in nature. Orographic का मतलब क्या होता है कि अगर तुम वेस्टर्न घाट्स को देखोगे तो अगर कोई माउंटेन है दिस स्पेस, तो अगर मान लो ये कोई माउंटेन है और हमारी कोई विंड ट्रैवल कर रही है विथ मॉइस्चर कैरी कर रही है, ठीक है। तो जब ये विंड्स इस माउंटेन के द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट होंगी तो ये अपना सारा का सारा जो मॉइस्चर होंगी इसी के साइड शेड ऑफ कर देंगी, इधर इन द फॉर्म ऑफ रेन और इन द फॉर्म ऑफ स्नो। सो यहाँ पे ये पूरा प्रेसिपिटेट कर देगी। अब जब ये लाइट हो जाएगा, जब इसके अंदर कम मॉइस्चर बचेगा, नेग्लिजिबल मॉइस्चर बचेगा, तो ये आगे मूव करेगी और जब ये सैचुरेट होगी, कंडेंस होगी, तो ये वापस प्रेसिपिटेट करेगी इस साइड पे। बट यहाँ के कंपैरिजन में ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं लीवर्ड साइड, इसे कहते हैं विंडवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड जो होगा वो उसमें बहुत रेन मिली होगी, पर जो लीवर्ड साइड होगा वहाँ इतनी प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, इसमें बहुत कंपेरेटिवली लो प्रेसिपिटेशन होगी। इसकी वजह से कई बार रीजन्स जो यहाँ होते हैं ना वो ड्राई भी होते हैं। ऐसा केस हमें वेस्टर्न घाट्स के अंदर भी देखा जाता है। वेस्टर्न घाट्स में भी जो वेस्टर्न रीजन होता है उसमें बहुत ही अच्छी खासी रेन मिलती है, मगर ईस्टर्न साइड सूखा पड़ा रह जाता है, यह बहुत ही कम रेन होती। साउथ वेस्ट मानसून अकर्स फॉर ओनली फॉर 4 months, जून टू सितंबर। जो साउथ वेस्ट मानसून है जून से सितंबर तक ही चलता है, ठीक है। द रेनफॉल बाय साउथ वेस्ट मानसून इज कॉल्ड रिलीफ और ओरोग्राफिक। इस टाइप की रेनफॉल को रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। The Deccan Plateau lying in the rain shadow of Western Ghats receive very little dew. That I told. देखो जो डिकेन प्लेटू है वो रेन शेडो एरिया में है। रेन शेडो का मतलब क्या है? रेन शेडो का मतलब लीवर्ड साइड, ठीक है। तो रेन शेडो एरिया है, लीवर्ड साइड है, इसलिए उसको बहुत कम रेन मिलती है डिकेन प्लेटू। Now next, the southwest monsoon divides into two branches due to tapering topography of peninsular India. जो peninsular India की टैपरिंग की वजह से जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है। पहली है अरेबियन सी ब्रांच एंड दूसरी इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून स्ट्राइक्स द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन केरला ऑन 1 June. It gives heavy rainfall on the windward side of Western Ghats as these winds are unable to cross over Western Ghats. These rainfall is called orographic relief. The Deccan Plateau lying in a rain shadow of Western Ghats receives very little rainfall. For example, Mahabaleshwar situated on western side of Western Ghats receives 250 centimeter of rainfall, whereas Pune, only a few kilometers away, receives very less rainfall
देन 70। ओके, सो क्या बात कर रहे हैं, अरेबियन सी ब्रांच के बारे में हम बात करें। अरेबियन सी ब्रांच जो होती है ना, अरेबियन सी ब्रांच साउथ वेस्ट मानसून जो होती है, अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून की अरेबियन सी ब्रांच सबसे पहले हिट करती है केरला में वेस्टर्न कोस्ट, मतलब मालाबार को हिट करती है ऑन 1 जून। ये 1 से 5 जून के बीच में भी हो सकता है, पर मेनली हमने देखा है कि 1 जून पे होता है, ठीक है। बहुत अच्छी खासी रेनफॉल देता है यहाँ पे, एक बहुत ज़्यादा मैसिव चेंज भी आता है, क्योंकि जो नदियाँ होती है एकदम पानी से भर जाती है, एकदम ओवरफ्लोइंग हो जाती है, और जो हमारी लैंड्स होते हैं, फील्ड्स होती है, वो भी बहुत ही लश ग्रीन हो जाते हैं, है ना। और ये जो है ना, वो हमें क्या कहते हैं, विंडवर्ड साइड में हमें रेन हैवी अच्छी खासी दिखती है। वेस्टर्न घाट्स की विंडवर्ड साइड में बहुत अच्छी रेन मिलेगी, पर ईस्टर्न घाट्स में इतनी रेन नहीं मिलती है, ठीक है। और इस टाइप की रेन को हम कहते थे ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल, है ना, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब जो डिकेन प्लेटो के बारे में भी हमें पढ़ा था कि ईस्टर्न साइड के रेन शेडो एरिया में लाई करते हैं, इसलिए इसको बहुत कम रेनफॉल मिलती है। अब एग्जाम्पल भी बताया गया है कि जो महाबलेश्वर है वो वेस्टर्न घाट पे, मतलब वेस्टर्न साइड पे है वेस्टर्न घाट्स की, तो इसीलिए वो 250 मतलब 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, काफ़ी अच्छी रेनफॉल है, रिसीव करता है, ठीक है। मगर अगर पुणे की बात करें, थोड़ी ही दूर पे है महाबलेश्वर की, पर फिर भी 70 सेंटीमीटर रेन, बिकॉज जो पुणे है वो ईस्टर्न साइड पे लाई कर रहा है, वो रेन शेडो एरिया में लाई कर रहा है। नेक्स्ट, द ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल गोज एंड डिक्रीजेस द अरेबियन सी ब्रांच मूव्स नॉर्थवर्ड। इट टेक्स 4 to 6 weeks to travel from कन्याकुमारी टू शिवालिक्स। अब क्या होता है, जो ड्यूरेशन, जो समय होता है और जो अमाउंट होता है रेनफॉल का, प्रेसिपिटेशन का, वो डिक्रीज करता रहता है जैसे जैसे अरेबियन सी ब्रांच मूव करती है नॉर्थवर्ड, ठीक है। इसको 4 से 6 हफ्ते लगते हैं कन्याकुमारी से शिवालिक ट्रैवल करने में, ठीक है। शिवालिक हिमालय की एक रेंज को कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, अरेबियन सी ब्रांच गिव्स वेरी लिटिल रेनफॉल टू राजस्थान ड्यू टू 2 रीजन्स। अब जो राजस्थान है वो हमें पता है कि वहाँ पे बहुत ही कम रेन होती है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो पहला रीज़न तो है अरावली की पैरेलल अलाइनमेंट, और दूसरा रीज़न है कि वहाँ पे इतनी हीट होती है, इतना टेम्परेचर हाई होता है कि वहाँ पे मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी विंड्स की बढ़ जाती है। क्या मतलब? The Aravalli alignment is parallel to the rain-bearing southwest monsoon winds, and as such they do not offer any obstruction. Furthermore, these hills are very low. इसका मतलब क्या है? Let me explain you. मान लो ये अरावली है, ठीक है। अब जो ना, पहली बात तो अरावली बहुत ही नीची है, अगर कोई अरावली ऊपर भी है तो यहाँ पे इनकी पैरेलल अलाइनमेंट है, पैरेलल है, तो मतलब क्या कि यहाँ पे विंड्स का ऑब्स्ट्रक्शन के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। विंड्स ऐसे ही सीधे सीधे चली जाती है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये कोई, पहली बात तो ये बहुत लो है, दूसरी बात इनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं, क्योंकि इनकी पैरेलल अलाइनमेंट है, ठीक है। पैरेलल अलाइनमेंट है तो विंड्स जो होती है ना, वो इनको ऑब्स्ट्रक्ट ही नहीं कर पाती हैं, इसकी वजह से यहाँ पे बारिश भी नहीं होती है। दूसरा, moisture laden winds passing over Rajasthan do not saturate as the heat in desert regions increases with their capacity to hold moisture, thus they reach the Shivaliks without shedding their moisture. क्या मतलब कि अगर तुम एक बाउल का एग्जांपल है, ठीक है, इसमें तुमने थोड़ा वाटर मान लो 5 ml का है, ठीक है। तो तुमने 5 ml का है, ठीक है, तो 5 ml तुमने इसमें पानी भर दिया, पूरा अच्छे से भरा, ठीक है। अब तुमने इससे बड़ा एक भगोना लिया और इसमें इतना ही पानी डाला 5 ml का, ठीक है। तो अभी भी इसकी, मगर इसकी कैपेसिटी है कि होल्ड कर सके, और अगर तुम इसमें और ऐड करोगे 6 ml 7 ml तो ये ओवरफ्लो करने लगेगी, पर अभी भी इसकी कैपेसिटी होगी कि इसका पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा, और इसी के अंदर एज इन द केस इन द क्लाउड्स ऑफ विंड्स और क्लाउड्स के केसेस में भी यही है कि जब उनकी कैपेसिटी बढ़ गई होल्ड करने की, तो अभी शेड ऑफ नहीं करेंगे अपना मॉइस्चर को, अपने प्रेसिपिटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उनकी मॉइस्चर कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है ड्यू टू द हैवी हीट एंड टेम्परेचर। द टोटल वॉल्यूम ऑफ अरेबियन सी ब्रांच इज मच मोर पावरफुल। अब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ अरेबियन सी ब्रांच है वो जो है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मोर पावरफुल है ड्यू टू 3 रीजन। पहली बात तो अरेबियन सी ब्रांच बहुत बड़ी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। दूसरी बात, जो होल अरेबियन ब्रांच है ना, वो पूरी कंट्री को, मतलब मेनली हर एरिया को अरेबियन से ब्रांच ही से रेन मिलती है, ठीक है। whereas only part it enters India through साउथ ईस्ट इंडिया में ही खाली बे ऑफ बंगाल से मिलती है, और इसके बाद वो म्यांमार और थाईलैंड की तरफ चला